जी हाँ, लेकिन साइड बहुत ही में अच्छा आखिरी ओवर डाला परांश ने। अगर शायद कैच नहीं छूटता तो हो सकता था कि अभी रिजल्ट कुछ और होता। यस खुशी, कैचेस की इंपॉर्टेंस कितनी है ना, ये हम कई बार हमने देखे हैं क्रिकेट में, इसलिए 1000 टाइम्स हम सुनते हैं, बहुत बार सुनते हैं, कैचेस विन द मैचेस, कैचेस पकड़िए मैचेस जीतिए। कैचेस अगर आप ड्रॉप करते हैं फिर जी हाँ, बहुत ही थ्रिलर मैच के बाद चलिए अब इस मैच की बात कर लेते हैं जो कि खेला जा रहा है राजहर्ष वॉरियर्स और आरपी वॉरियर्स वॉरियर्स के। राजहर्ष वॉरियर्स का नाम आते खुशी क्या याद आता है? 82 का वो टारगेट इन्होंने चेस किया था। सो ऐसे में एक्साइट करता है ये न्यूज, ये बात, सबसे बड़ा टोटल चेस करने वाली टीम मैदान पे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस टूर्नामेंट की एक ऐसी टीम है जिन्होंने चेजिंग में कमाल किया है, मनीष भाई एंड टीम। सिंगल की तलाश थी, मिलेगा नहीं। वन मोर गुड बॉल। और जो हमारी एलईडी टीम है जो देख रहे हैं, स्क्रीन को डार्क कर दें प्लीज, प्रेजेंटेशन होगा, स्क्रीन को डार्क कर दें फोटोग्राफ, थैंक यू। दर्शन भाई से वी आर रिक्वेस्टिंग सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच, दर्शन भाई आ जाएं प्लीज। एस अभिषेक डायमंड। And to present the award, we request Abhishek bhai. Our super striker from the match between S Abhishek Diamonds and our Gupta Warriors is Mr. Darshan. Darshan, please stage पे आइए अपना award collect करने के लिए. Darshan from S Abhishek Diamonds team. Everyone. Darshan is coming to collect his Super Striker of the Match award, sponsored by Point Off, courtesy of Mr. Rajesh Jain. बहुत जबरदस्त एफर्ट खुशी वहां ग्राउंड में, बहुत कमाल की फील्डिंग। वेल डन हर्षित गुप्ता, बाउंड्री सेव किया है उन्होंने। नाउ एवरीबॉडी, वेल डन दर्शन, वेरी वेल डन वंस अगेन। नाउ अभिषेक भाई वन मोर, अभिषेक भाई एक और अवार्ड देना अभिषेक भाई, मैन ऑफ द मैच का। एवरीबॉडी, मैन ऑफ द मैच व्हिच इज स्पॉन्सर्ड बाय अनिल जी बजाज हिल लिमिटेड, एंड बिहाफ ऑफ हिम वी आर रिक्वेस्टिंग एस अभिषेक डायमंड के टीम ओनर अभिषेक भाई टू प्रेजेंट द अवार्ड सर। Ladies and gentlemen, we proudly welcome CA
Prihan. CA Prihan. There we have CA Prihan with us. CA Prihan, what you have got to say about this special inning? I think the team has backed me up well. They've let me, play my shots and do my thing. Thank you. Anything else would you like to say in grand finale? You have qualified for grand finale. How do you see the next match, Prihan? Very happy to be there. All thanks to the team, and I hope we win that as well. Prihan, I must say you have got the biggest support. You know, the supporters are there. There are your certain friends there. So what you have got to say about this? I'm very lucky to have them in my life. I think the best bunch of people I know. Thank you. They were, suggesting me, sir, when you are calling Prihan, call CA Prihan. So how does it feel? No, I mean, it's good. I think in the future, hopefully, that'll be. Prihan, what is more difficult, as being CA or playing such inning like they are in middle? I think playing such an innings because this is the first innings I've played in 4 matches. CA the first attempt में हो गया था. Prihan, oh, CA first inning में लड़के ने कर लिया था. Prihan, very well done. We all, proud of you, the way you have played there. Very well done. All the best for grand finale. CA Prihan, everybody. That was man of the match from and the game striker presentation. Prihan and Darshan. Thank you everyone, and now let's go back to the live match that's going between RP Warriors and Rajharsh Warriors. Rajharsh Warriors, they must be feeling very great, कोई भी टीम जब आप 82 चेस करते हैं उसके बाद कॉन्फिडेंस उनका 7वें आसमान पर होगा. वहीं पे RP Warriors एक ऐसी टीम है जो बहुत ही कंसिस्टेंट रहे हैं. खुशी, हम सबको पता है किस तरीके से मनीष भाई अपनी टीम को लेके चलते हैं. मनीष भाई हो, साहिल हो, निखिल भाई हो, हर्षित गुप्ता हो, कई ऐसे प्लेयर हैं. There are certain players, certain youngsters who has done really well for the team. Great stroke, great stroke. Fielder जरूर है वहां पे, लेकिन सिर्फ देखते रह जाएंगे. आप और हमारी तरह वो भी ऑडियंस की तरह ही नजर आए वहां पे. ग्रेट हिट, ताकत भी थी वहां पे, प्लेसमेंट भी अच्छा था, बहुत जल्दी लेंथ को देख लिया था. स्कोर मूव्स टू 17 सिद्ध. 17 रन्स 2 ओवर्स के बाद. जी हाँ, बहुत ही अच्छा स्कोर है ये. 17 रनों का, 1 विकेट गवा के 2 ओवरों के बाद अच्छी बैटिंग की जा रही है राजहर्ष वॉरियर्स के द्वारा. एंड हमने उन्हें चेस करते हुए भी देखा था पिछले मैच में, तो हमें पता है कि अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, अच्छा टोटल खड़ा कर सकते हैं यहाँ पे. और ये दोनों जो बैटर्स हैं, खुशी, हमने इन दोनों को ही देखा है. वो परफॉर्मेंसेस हमने इनसे देखी है. 2 ओवर्स में 17 हुए हैं. सिड स्ट्राइक पे है, नॉन स्ट्राइक एंड पे जो है, ये भी कितने डेंजरस हैं, ये भी हम सब ने देखा. सो प्रीत राठौड़ और सिड सुराना. प्रीत पिछले मैच के लास्ट मैच के सुपरस्टार रहे. उस बड़ी चेज में हीरो यही थे. सो कमाल की इनिंग आई है इन दोनों से ही. फिर से यंग एक्साइटिंग टैलेंट के ऊपर हम सब की निगाहें. वाइड का इशारा है. हम सबको बताते रहते हैं ये बात पुरानी काम की, 10-20 घरों में चर्चे हों तब ये जवानी काम की. और 10-20 घरों में नहीं, पूरे मुंबई में और पूरे इंडिया में, अक्रॉस द ग्लोब जितने लोग यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, हर जगह तो बातें होंगी. जो भी टीम चैंपियन बनेगी, जो प्लेयर्स अच्छा करेगा, वन अभिघ्न प्रीमियर लीग, ये हाई क्लास टूर्नामेंट जाना जाता है अपने शानदार ऑर्गेनाइजेशन के लिए. बडीज, अभिघ्न बडीज, पिछले कई सालों से उनका जो टूर्नामेंट है बहुत ही पॉपुलर हुआ है. खुशी, कई रीजंस की वजह से. आज हमने जो ट्रॉफी लॉन्च देखा, वन ऑफ अ काइंड, आप रेयर, कभी शायद किसी ने नहीं देखा होगा ऐसी ट्रॉफी लॉन्च. और ट्रॉफी लॉन्च किसने? पुनीत जी सुराना, प्रीति जी सुराना. पुनीत जी सुराना, प्रीति जी सुराना, कमाल का वो. और मैं तो प्रीति जी के बारे में अभी भी सोच रहा हूँ. मैं एक स्टोरी पोस्ट कर रहा था, मैं सोच रहा था कि कितना कॉम्प्लीमेंट करूं, कितना लिखूं मैं प्रीति जी के उस करेज के लिए. पुनीत भाई तो साइड में हो गए, नहीं भाई मैं नहीं जा रहा, इनको मेरी मिसेस से पूछ लो. प्रीति जी ने बोला श्रेणियां शेरों से कम थोड़ी नहीं है, हम जाएंगे.
जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही अच्छा ट्रॉफी रिवील देखा हमने आज शाम को। बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों ही बैटर्स, प्रीत और सिड। और जितने अच्छे लग रहे हैं, एक बात आप ये भी याद रखें, दुनिया में जितनी चीजें अच्छी लगती हैं उतनी खतरनाक भी होती हैं। आप ये माउंटेन्स देखें, अच्छा लगता है ना, डेंजरस है। आप समंदर देखें, अच्छा लगता है, डेंजरस है। सो ये दोनों भी ऐसे ही भाई, दिखने में अच्छे लग रहे हैं लेकिन उतने ही जालिम है। ये दोनों टीमें भी ऐसी ही हैं, दिखने में अच्छी दिखती हैं फील्ड के बाहर से, लेकिन बहुत ही डेंजरस है। और हमारी इन बातों पे वहां पे स्टैंप लगाते हुए सिड, मैक्सिमम आउट ऑफ द पार्क, एवरीबॉडी ह्यूज एंड हैंडसम बाय हैंडसम सिड। वेरी वेल डन ब्रदर। मांगो और क्या चाहिए, सिड कहते हुए, प्रीत राठौड़ कहते हुए, सिर्फ आवाज करो हम यहां पे डिलीवर करेंगे। अ ग्रेट हिट। क्या टाइम किया था, अगर पिछली बॉल आपने देखा, स्कोर 27, सिड 27। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ा श्योरा ज्वेल 6 देखा हमने यहाँ पर सिड शिव- के बल्ले से। यस, बाय प्रीतेश जी मेहता, शेरा ज्वेल्स। ये सबसे बड़ा हिट था टूर्नामेंट के। जो 2-3 सबसे लॉन्ग डिस्टेंस जिन गेंदों ने ट्रेवल किए हैं वो पिछली बॉल पे हमने देखा। खुशी, वाओ, ताकत भी नजर आई और उसके साथ साथ में जो जिस स्टाइल से उन्होंने खेला। सौरभ गांगुली साहब को मैंने ये हमेशा सुना कहते हुए कि कोई भी प्लेयर जब आप गेंदों को मिडल करते हैं, आप ज्यादा हैंडसम लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, गुड लुकिंग लगते हैं। वाइड का इशारा। 3 यंगस्टर्स एक्शन में हैं। सिद्ध है स्ट्राइक पे, जो बॉलिंग कर रहे हैं जयवीर, हम सबको पता है वो भी बहुत टैलेंटेड है, आरपी के लिए बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं। जरूरी है कि ऐसे मोमेंट में थोड़ा सा यहां पे ना आपके कैरेक्टर का भी टेस्ट होता है। आप साइकोलॉजिकली कैसे सोचते हैं खुशी, उसका भी यहाँ पे टेस्ट होता है, इम्तिहान होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और यंगस्टर्स खेल रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में ये गेंदें डालने के पहले। 2.4 ओवर्स के बाद स्कोर पहुंच चुका है 29 for 1। 2.4, 29 for 1। राजहर्ष वॉरियर्स वर्सेस आरपी वॉरियर्स। अच्छी बॉल थी ये, अच्छी बॉल थी ये, अच्छी स्पीड के साथ, अच्छे टप्पे के साथ, अच्छा वो बाउंस भी नजर आया। सो वेल डन जयवीर। कुछ अच्छे स्ट्रोक्स भी हमने देखे, कुछ अच्छी गेंदबाजी भी, अच्छा क्रिकेट ओवरऑल। बाहरी किनारा, लेकिन भाग्य का मिलता हुआ सहारा। एज लगा था, वो कैच पकड़ा नहीं गया। अगर ये विकेट मिलता तो आप सोचे किसका विकेट मिलता, ये प्रीत का। प्रीत थे स्ट्राइक पे, लेकिन वो कैच हुआ नहीं है, सिंगल मिला है, ओवर कंप्लीट हुआ। 3 ओवर्स के बाद रन्स हैं 31 विकेटों के नुकसान के बाद। कैसा स्कोर लग रहा है आपको खुशी, और आप देख रहे हैं कि जा सकते हैं द वे दीज टू आर स्टिल देयर प्लेइंग रियली गुड क्रिकेट। सेट हो चुके हैं, 3 ओवर्स और आने बाकी हैं। कितने हार्ड स्ट्राइकर्स हैं हम सबको पता है। सो आने वाले और 3 ओवर्स में इन 30 से और कितना आपको लगता है बन सकते हैं? आलोक, मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। दोनों बैट्समैन सिड और प्रीत सेट हो चुके हैं, तो 3 ओवरों के बाद मेरा प्रेडिक्शन है कि 30 प्लस और होगा, 60 to 70 तक स्कोर पहुंचेगा। ऐसा होना तो चाहिए। जो सिचुएशन है आपने एकदम सही कहा, 30 प्लस और कम से कम बनने चाहिए। 2 सेट बैटर्स, आने वाली बल्लेबाजी और भी अच्छी है इनके पास, राजहर्ष के पास। और लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना होगा ना कि क्या वापसी करेगी आरपी वॉरियर्स, और हमेशा ही कम बैक के लिए जाने जाते हैं मनीष भाई और उनकी टीम। जी हाँ, चेजेस के लिए जाने जाते हैं मनीष जी, कमबैक के लिए जाने जाते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा ये भी। यहां से आगे की जो जर्नी है इन बचे हुए 3 ओवर्स की, उसमें आप बहुत सारा थ्रिल एक्शंस देखने वाले हैं। और क्रिकेट तो यही है ना, कभी आप देखते हैं दूसरी टीम बहुत आगे, फिर एक ही ओवर में आप देखते हैं पूरी तरीके से वो तस्वीर चेंज होती हुई नजर आती है। और बॉलिंग के लिए कौन आ रहे हैं? मनीष भाई आ रहे हैं। जी हाँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर होगा ये आरपी वॉरियर्स के लिए, कैप्टन खुद डालने आ रहे हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये भी देखना कि एक तरफ इतना अनुभव और दूसरी तरफ 2 युवा जोश, जी हाँ, एक्सपीरियंस। बिल्कुल। पहली गेंद
And that's a boundary. पहली गेंद पर तैयार थे लेफ्ट हैंडर प्रीत राठौड़। आप ये ना भूलें इनका कैच छूटा था लास्ट ओवर की आखिरी बॉल पर, और अब ये उन जो जख्म से लगे थे उन जख्मों पर इस 4 रन ने क्या किया है ना, वो नमक सा छिड़कने का काम किया है। खुशी कैचेस छूटे, उसके बाद अगली बॉल पर ही बैटर 4 रन मारते हैं। That was a boundary by Shora Jais, courtesy to Mr. Pritesh Mehta. And again, it's a 4. Back-to-back 2 consecutive boundaries by this youngster, Preet Rathore against Manish. एक तो इसके पहले वाला जो था वो तो पूरे कंट्रोल में खेला गया था, जो पहला चौका आया था, लेकिन इस बार आप इसको बहादुरी के 4 रन कहें या किस्मत के बड़े रन्स तो हैं। जी हाँ, बिल्कुल, रन्स तो ऐड होते जा रहे हैं टैली पे। 38 पे स्कोर पहुंच चुका है 3.2 ओवर्स के बाद। 38, 3.2। प्रीत राठौर लुकिंग मोर डेंजरस नाउ। अब ये टॉप गियर में बैटिंग कर रहे हैं, भले मर्जी सामने टॉप गेंदबाज है, लेकिन इंटेंट क्लियर है, अप्रोच क्लियर है। अटैक इज द बेस्ट वे टू डिफेंस। जी हाँ, बिल्कुल, और मजा आ रहा है मैच देखते हुए। कैच था फिर से प्रीत राठौड़ का कैच ड्रॉप हुआ है। आरपी वॉरियर्स इस बड़े मंच पे अपने आप को अभी संभालने में नाकाम नजर आती हुई। एवरीबॉडी, पिछले मैच में संजय भाई को आप देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि फील्ड में क्या हो रहा है। 2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, और दोनों भी किसके? प्रीत राठौड़ के, एक ऐसे बैटर्स का जिन्होंने हाईएस्ट टोटल चेज किया है। ये बड़ा कॉस्ट कर सकता है इनको, और कर रहा भी है। खुशी जी हाँ, देख रहे हैं हम, बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज पड़ रही हैं, और अब कैच छोड़ दिया गया है। एक बार फिर स्कोर पहुंच चुका है 40 पे 1, 3.3 ओवर्स के बाद, और प्रीत अभी खेल रहे हैं 25 रनों पर एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 227, एंड उनके पार्टनर सिट खेल रहे हैं 10 रन्स पर एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 200। तो बल्लेबाजी तो बहुत ही अच्छी हो रही है, बहुत ही एंटरटेनिंग है, हर कोई एंजॉय करता हुआ इस मैच में। अगर आप देखें तो इन दोनों बैटर्स ने वो माहौल क्रिएट करके रखा है, वो जो चार्म है वो क्रिएट करके रखा है। अगर आप राजहर्ष वॉरियर्स के सपोर्टर्स हैं तो आप बहुत खुश होंगे। अगर आप अच्छा क्रिकेट देखने आए हैं तो आप बहुत खुश होंगे। अगर आप आरपी वॉरियर्स के सपोर्टर्स हैं तो आप शायद प्रे कर रहे होंगे कि यार भगवान कुछ ऐसा करो कि इनके विकेट्स जाएं, कुछ ऐसा करें कि इनको आउट किया जाए। जी हाँ, और बिल्कुल वो सेमीफाइनल्स वाली एनर्जी दिख रही है हर एक प्लेयर पे। 2 यंगस्टर्स दिलकश बल्लेबाजी करते हुए, आई कैचिंग बल्लेबाजी करते हुए, ऐसा लग रहा है ना कि इनको देखना एक ट्रीट की तरह है। आप प्रीत को देखें या सिट को देखें, दोनों ही खेलने का तरीका एक ही है, अटैक करते हैं दोनों, सिर्फ फर्क इतना है एक राइट हैंडेड और दूसरा लेफ्ट हैंडेड। भाई ये डेडली कॉम्बो है, और दोनों भी वहां पे 3.3 में 40 पहुंच चुके हैं। मनीष जी के शुरुआत की 3 गेंदों में 10 रन, 10 रन, और ये काफी क्लोज गई है लेग स्टंप के बॉडी के, इसलिए अंपायर्स अनमूव नजर आए, कोई एक्शन नहीं। सो वाइड विल बी एडेड इन टोटल अकाउंट एंड द स्कोर मूव्स टू 41 for 1 after 3.4 overs. Manish ji is ready to bowl his next delivery, and Preet is on the facing end from Rajharsh Warriors team. पिछली बॉल डॉट थी, और अच्छा डिसीजन अंपायर्स का, उनको ऐसा लगा कि अनमूव नजर आए, सो वाइड नहीं। 3.5 ये सिंगल, 41 पे स्कोर। थ्री 41, 1 to go। एक आखिरी बॉल है आने बाकी। इस ओवर में 11 रन आए हैं, 5 गेंदों पे 11 रन आए हैं, और ऐसे में ये 2 बैटर्स के अगेंस्ट तो अभी तक तो आरपी खुश होगी, ठीक ठाक ही रन्स खर्च किए गए हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं है, चूंकि ये 4th ओवर चलता हुआ। ये दोनों कितने कैलिबर के बैटर्स हैं हम सबको पता है। आखिरी बॉल भी अगर मनीष भाई बड़े हिट नहीं देते हैं तो खुश होंगे, और नहीं दिया है, और समझदारी भी दिखाई है सिड ने। सॉफ्ट हैंडेडली खेला गया। दिस इज ग्रेट क्रिकेट,
This is good, smart and intelligent cricket by these two. जी हाँ, और 2 रन्स चुरा लिए हैं उन्होंने लास्ट गेंद पर। इंग्लिश में एक सेइंग है और बहुत ही अच्छी है खुशी, एंड वो कहते हैं द ग्रेट बैट्समैन आर नॉट ऑलवेज एग्रेसिव बट दे नो व्हेन टू बी। जी हाँ बिल्कुल, और हमने बात भी की कि स्ट्राइक रोटेट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है इन क्रिकेट के मैचों पर। 4 ओवर्स के बाद 43 बने हैं। इन दोनों को पता है कौन सी बॉल पर हमला करना है और कौन सी बॉल को थोड़ा सम्मान देना है। लास्ट बॉल सॉफ्ट हैंडेडली खेला गया। मैं यही देखना भी चाहता था ना कि किस अप्रोच के साथ मनीष जी को खेलते हैं। शुरुआत की 2 गेंदों पे अटैक करने का प्रयास किया गया, एक चौका पूरे कंट्रोल के साथ, दूसरे में जैसे ही एज लगा उसके बाद इन दोनों ने मनीष जी को इज्जत दी, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया और कहीं ज्यादा इंटेलिजेंसी के साथ खेले। 4 ओवर्स 43, लास्ट 2 ओवर्स टू गो, एंड हमारे पास नौकार चैंप्स के प्लेयर है। 12 पे और कितने बन सकते हैं भाई? 43 हो चुके हैं। सिड और उनके सामने उनके पार्टनर हैं 25 रन्स। यश का ऐसा मानना 25 मोर रन्स इन 12 बॉल्स पे। देखते हैं। थैंक यू यश। खुशी चलते हैं ना सिड के मॉम डैड के पास। जी चलिए सिड के मॉम एंड डैड से प्रेडिक्शंस ले लेते हैं। 4 ओवर्स हो चुके हैं मैम एंड 44 for 1 इज द स्कोर। सिड खेल रहे हैं 12 रन्स पे 6 बॉल्स के बाद। क्या लगता है आपको टीम का स्कोर क्या होगा एंड सिड कितना स्कोर करेंगे? आई थिंक मिनिमम 70, मिनिमम, मैक्सिमम आई डोंट नो। और जैसे ही खुशी आप उनके मॉम के पास है, आप देखिए सिड वहां से स्ट्राइक पे भी आ चुके हैं। फादर साहब से ये पूछते हैं, पिता के इमोशंस वो दबा के रखते हैं, वो नहीं जल्दी बोलते हैं। पुनीत भाई, व्हाट डू यू थिंक? 75 is the score, I think. We should go for 75. लॉन्गेस्ट 6 मारा है सिड ने इसके पहले, आपने देखा। और फिर से अच्छा ये स्ट्रोक, बॉटम हैंड का यूज। कितना मजा आया वो सिक्सर देख के जो सिड ने लगाया था। Excellent. आपको क्या लगा वो 6 देख के? कितना ही अच्छा शॉट मारा था। उसने मुझे बोला था घर पे ही कि मॉम ऐसे वैसे शॉट मारने ना, बस मैं मारूंगा। भाई मॉम से वादा किया गया था। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा और मॉम कह रही है ऑलरेडी उसने बोला था। जी हाँ, और करके भी दिखा रहे हैं ऐसे। और लीजिए अब प्रीत राठौड़ सही, जब स्ट्राइक पे दोनों में से कोई भी आ रहा है तो कुछ ना कुछ आप स्पेशल देख रहे हैं। खुशी, शिवराज बहुत ही अच्छी बैटिंग हो रही है अभी राजहर्ष वॉरियर्स के द्वारा। शिवराज ज्वेल्स के ये मैक्सिमम आते हुए, एंड क्या 50 अब भी हो चुका है। जी हाँ, 2 पे 2 सिंगल्स आए थे और अब जैसे ही मौका मिला। Beautiful. Yesterday you were not there. 4.3, 52 for 1. मैं फ्लैट हो गया, मैं आपके पैरों में बैठता हूँ। 52, 4.3, 3 बॉल्स और बाकी हैं। एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं की इन दोनों ही बैटर्स ने। अगर मेरा वश चले तो मैं वन अविघ्न के सेक्रेटरी साहब संजय भाई से, बडीज से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाए एंटरटेनमेंट का। और अगर कोई हमारे में कोई ऐसा है जो स्पीड पोस्ट का काम करता है तो इन दोनों को आप उसका भी एम्बेसडर बना सकते हैं। फास्टेस्ट रन गेटर्स। वेल डन सिड, सुराना एंड प्रीत राठौड़। कितना अच्छा लग रहा है ना आप दोनों को, आप देखें आपस में बात करते हैं। अच्छी बात यह आई कि मैं बहुत अच्छा, लास्ट ओवर मनीष जी के अगेंस्ट जिस तरीके से इन्होंने खेला वो भी हम सबको बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। मनीष भाई को पहली बॉल वो चौका, गैप में एक भी स्ट्रोक्स आपने इनको आउट ऑफ द सिलेबस नहीं देखा। जो टेक्निक था वो नजर आया, गेंदों को उनकी मेरिट के हिसाब से खेले। वेल डन, 2 पढ़े लिखे ग्रेजुएट बैटर्स खेल रहे हैं। लॉन्ग ऑफ की ओर मार के एक सिंगल चुराते हुए प्रीत, एंड स्कोर अब पहुंच चुका है 64 for 1 आफ्टर 4.5 ओवर्स। लास्ट बॉल फ्रॉम निसर्ग। लास्ट बॉल है और प्रिडिक्शन लेते हैं फटाफट। कितने रन आ रहे हैं सर लास्ट बॉल पे? सर लास्ट 2 balls.
I'm expecting at least 5 runs. खुशी आप शॉक ना हो, आपने जो स्कोर अनाउंस किया वो कई बार वो क्लिंच होता है, वो स्कोर आपने सुना होगा उतने रन्स। एक्चुअली हम जो एलईडी पे स्कोर डिस्प्ले हो रहा है वही देख के अनाउंस कर रहे हैं, खुशी ने भी वही किया। 4.5 अब 55 है। We need 20 more in 7 balls. We need 20 more runs in remaining 7 balls। देखते हैं। पुनीत भाई, सुराना साहब, कुछ और डिमांड करो बेटे से, आज सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। मैंने 5 मांगे थे, उसने 6 दिए। Boundary Shiora Jewels, that's the end of over number 5 and the score moves to 59 for 1. 59 for 1 and ये एक नंबर बैटिंग हो रही है दोनों से। So 59, 5 overs have been bowled। कुछ और लोग, कुछ और जो ऑडियंस है उनके पास चलते हैं और Predictions लेते हैं। देखते हैं क्या लगता है सबको। खुशी, बहुत सारे और प्यारे प्यारे लोग बैठे हैं। सर गुड इवनिंग, जय जिनेंद्र, क्या लगता है लास्ट, सर मैम, लास्ट 6 balls टू गो, प्रीत एंड उनके साथ सिड है, कितने रन्स? 15। देख हिट ही होना है। 1 ओवर में वो 12 से 15 रन्स मारेंगे, ऐसी प्रिडिक्शन। जिसकी भी प्रिडिक्शन ठीक होगी उसको बडीज की तरफ से 17 Pro गिफ्ट है। अपना टारगेटेड 75 लग रहा है। कीर्ति जी क्या लग रहा है? 75। मैम? नियर बाय 70। नियर बाय 70। 72। ये नहीं बोल रहे थे, 17 Pro के बाद बोले हैं। प्राइस दे देना। अभी 12 रन हो गए 1 ओवर में, तो प्राइस दे देना। यस यस मैम, मैं सलमान खान तो हूं नहीं, कमिटमेंट करके वापस नहीं आ सकता हूं। There we go. This is high fly into the sky. A very well done. What a great hit. Sixer on the very first ball. And the score moves to 65 now. Shiora Jewels maximum, and look at that stroke. 65. 75 तो होना चाहिए, कहने का मतलब 75 होगा। लोगों में, हमारे ऑडियंस में एक्साइटमेंट और आती हुई, अब उनको लग रहा है इनके सारों की आंखों में अब वो लाइट देखे और आ चुकी है सब में। इतने लालची हैं लोग, पहले 10 से 12, 12 से 15, अब कह रहे नहीं 10 रन और बढ़ाओ। जी हाँ, बिल्कुल प्रिडिक्शंस बदलती जा रही हैं हर बॉल के बाद, क्योंकि Yes. इतनी अच्छी बैटिंग हो रही है राजहर्ष वॉरियर्स के द्वारा। खुशी, वो कहते हैं ना, दिल मांगे मोह, दिल मोह मांगता हुआ। और मुझे लगता है जब तक प्रीत और सिड क्रीज पर हैं तो दिल और ही मांगेगा। पहली आलोक जी, बॉल, आपको क्या लगता है कहाँ Yes. तक पहुंचेगा ये स्कोर? 65। यार मैं सच बोलूं ऑनेस्टली, तो अगर माइक मेरे हाथ में नहीं होता तो मेरा दिल मनीष भाई के लिए धड़क रहा है, क्योंकि वो पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत मेहनत की है। अगर मनीष जी की टीम आरपी वॉरियर्स इस मैच को खेल रही है तो मनीष भाई ने बहुत हार्डवर्क किया है, अच्छा क्रिकेट खेला है। बट खेल है, और जो बेटर खेल रहा है हम सबको वो बात तो बोलनी ही है। प्रीत राठौड़, फिर से वही एरिया टारगेट किया गया, और क्या फिर से वही रिजल्ट है। जी हाँ, सेम डायरेक्शन एंड द सेम रिजल्ट। One more maximum, Shiora Jewels, sixer. Guys. ओवर में 12 रन से ज्यादा हो गए, तो ये 2 बॉल में ही हो गए। रिकॉर्डिंग चेक कराया जाए। मैम ने बोला था 12 से 15 बनेंगे, अब बोल रहे हैं 12 बनेंगे। 15 ही बोले, 2 बॉल में 12 रन हो गए। हाँ तो मैम, अगर उससे 12 से 15 आपने बोला था उससे ज्यादा बनेगा तो मैं 17 Pro आपसे लूंगा। 72, 5.2, 4 balls to go। इसके साथ प्रीत भी 46 पर पहुंच चुके हैं 18 गेंदों के बाद। क्या बात है, अगर प्रीत ये हाफ सेंचुरी बनाते हैं तो ये इनकी सेकंड हाफ सेंचुरी होगी एंड टूर्नामेंट थर्ड हाफ सेंचुरी होगी अपनी। फिर से बड़ा हिट है, फील्डर आते हुए, एंड देयर वी गो, 50 रन्स कंप्लीटेड। His second half century of OAPL Season 2, Preet Rathod.
playing on 50 in 19 balls after hitting 5 fours and 3 sixes. Yes, Kushi, what a great batting, what a great display of cricket by Preet Rathod, ladies and gentlemen. The way he is playing, no stopper for him. Unstoppable Preet Rathod making second consecutive 50. What a great form, what a great day of cricket by Preet. This time chooses a different direction and taken easily at forward point. Preet backing to the net, but after playing a great knock. Unforgettable inning by Preet Rathod once again. When he departs before that, making sure कि जब तक कि वहां पर है, तब तक वो जो रन रेट है, वो ऐसे ही रहेगा. किरदार ऐसा हो, टैलेंट वैसा हो कि वो आप कहते हैं ना कि पर्दा गिरने के बाद भी लोग तालियां बजाते रहे. प्रीत गए वापस, क्लैप हो रहा था वहां पे, और जब स्टैंडिंग ओवेशन आपको डगआउट से मिले तो वो आपने रिस्पेक्ट कमाई है. वो काम आप करके आ रहे हैं वहां से. 76, 5.4. प्रणय भाई ने कैच पकड़ा, बहुत ही शानदार कैच. प्रणय भाई के लिए भी तालियां बनती हैं. वेल डन प्रणय जी. निखिल राणावत, यस. निखिल रजावत न्यू बैटर, निखिल राणावत बॉलर. दोनों निखिल आमने सामने. वैसे तो राशि तो राम भगवान की और रावण की भी एक ही थी. राम रावण, काम किसका अच्छा आप देखते हैं. नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा. हर्षित वहां पे हैं, और हर्षित कोई गलतियां नहीं करते हुए सृष्टि गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड का विकेट. बैक टू बैक 2 गेंदों में ये 2 सफलताएं आ चुकी हैं. काफी समय के बाद कुछ वो राहत वाले पल मिलते हुए आरपी वॉरियर्स की टीम को. नहीं तो ऐसा लग रहा था ना कि सब कुछ उनके अगेंस्ट ही चीजें हो रही है. जैसे प्रीत गए, देखिए ना, वो कुछ रहते हैं ना कि कुछ कदम आपके घर में आते हैं, जैसे शादी होती है, कोई बहू उनके कदम आए तो घर में बहुत सारी रौनक आती है. हम कहते हैं यार हमारी बच्ची चली गई, घर से रौनक चली गई. ऐसे प्रीत वहां पर थे. प्रीत जब तक थे, मुझे लता जी का वो सॉन्ग याद आ रहा था, ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं. क्या मिलेगा हैट्रिक कीर्ति भाई? हो सकता है मैम, लग रहा है हैट्रिक मिल सकता है. Can't predict. नहीं. भाई साहब, हैट्रिक की बॉल है, 5.5 है. और अच्छी बात, या मैं यूं कहूं कि एक थोड़ी सी बात ये भी है ना कि लास्ट बॉल ही है इनिंग की. सो सब कुछ पॉसिबिलिटीज हैं. Score है 76 for 3 and this is the last ball of the first innings bowled by Mr. Nikhil Ranawat to the new batsman Mahir Jain. 76 से और कितने, या निखिल भाई के पास हैट्रिक का भी चांस है. बॉल मिस हुआ है, रन आउट का चांस है. दूसरे एंड पर टीम हैट्रिक, टीम हैट्रिक. 100% बोला था हैट्रिक मिलेगा और रन आउट वो भी. दोस्तों, हमारे पास बागेश्वर धाम के बाद, बागेश्वर बाबा के बाद एक और बाबा हैं, कीर्ति भाई. अगर आप लोगों को आपके हाथ दिखाने हैं, भविष्य दिखाने हैं, तो कीर्ति भाई से हम सब कांटेक्ट कर सकते हैं. इनको 17 प्रो दो. कीर्ति भाई 17 प्रो आपका दिखाइए, कहाँ है, एक बार सिर्फ दिखाइए. कांग्रेचुलेशन सर, दिस इज 17 प्रो मैक्स. थैंक यू गाइस, थैंक यू. 76 बने हैं, टीम हैट्रिक मिली है और 77 का होगा टारगेट. सेकेंड इनिंग की तरफ चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ा चैलेंज है खुशी आरपी वॉरियर्स के सामने इस टोटल को चेस करने के लिए. जी हाँ, हम कल से आज तक देखते आ रहे हैं कि चेसेस बहुत ही अच्छे किए हैं आरपी वॉरियर्स ने. मनीष जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है चेसिंग में, तो मुझे लगता है कि चेस देखने में भी बहुत मज़ा आएगा. और 76 भी शायद आरपी वॉरियर्स के लिए इतना बड़ा स्कोर ना हो. बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं इनकी टीम में. मनीष भाई हैं, साहिल हैं, जयवीर हैं, हर्षित हैं. हम सबको पता है इन सब पे निगाहें होगी. अब देखते हैं किस तरीके से सेकंड इनिंग में खेलते हैं, क्या इंटेंट
भाई वैसे ही है, चुपचाप रहना, अपना काम करना। जी हाँ बिल्कुल। जेन्युइन टारगेट बड़ा हो गया, मुझे लगा 60-65 तक जाएगा, बट बहुत बड़ा हो गया। बट ठीक है, हमको अपना क्रिकेट खेलना है, हमको अपना क्रिकेट खेलना है, बेस्ट खेलना है। संजय सर आपका क्या प्रिडिक्शन है, क्या लगता है? टोटल तो थोड़ा बड़ा है लेकिन चेज हो जाएगा? हम लोग जीतेंगे, अगर 2 ओवर अच्छा खेल लिया तो हम लोग जीतने के चांस है। कोई दो तीन प्लेयर्स ऐसा है ना खुशी, इनको आप Look out चाहते हो for. कि यार अच्छा करें, फंक्शन करें, जो फॉर्म में है? एक तो मनीष भाई है, साहिल है, जेवीर है, हर्षित है, और हमारे पास मेहुल भी है और हम भी है। हर्षित रेडी हो रहे हैं, 2 बैटर्स वहां पे गए, साहिल भाई और राजू भाई, दिस आर द 2 ओपनर्स। खुशी, देखते हैं सेकंड इनिंग में क्या होता है। जी हाँ, मजा तो बहुत आएगा ये चेज देखने में। And that's the approach, that's the intent required. Everybody, RP Warriors, सेकेंड इनिंग में क्या अटैक होगा, क्या इंटेंट होगा, उसका ये जवाब हम सबको बहुत जल्दी मिलता हुआ। खुशी जी हाँ बिल्कुल, 2 गेंदों पर स्कोर पहुंच चुका है 12 पर। फोटोग्राफी टीम, इवेंट टीम, आई एम ऑलरेडी वेरी मच प्राउड एंड वेरी मच हैप्पी द वर्क यू गाइस हैव डन इन दिस 2 days. ये सिक्सर आया है साहिल के बैट से, शिवरा ज्वेल्स के। किसे मिलेगा जीत का ये सम्मान, अब ये बताने के लिए नेक्स्ट फॉर फ्यू ओवर्स आई वुड रिक्वेस्ट माय को पार्टनर, माय एल्डर ब्रदर शालीन भाई गुप्ता। बहुत ही शालीन से, बहुत ही प्यारे से, बहुत जबरदस्त आवाज। शालीन भाई आइए, हम सब आपको मिस कर रहे हैं। लीजिए शालीन भाई। अरे मैम नंबर नहीं लगा, वो तो ये हमारी कृपा कि वो आए। शालीन भाई क्या लगता है ये चीज? और आप लोग इतना बढ़िया कर रहे थे, मजा आ रहा था। खुशी ने भी जबरदस्त कमेंट्री की। क्या लगता है ये टोटल कैसे देख रहे हैं शालीन भाई? टोटल बहुत ही ज्यादा है जैसा कि मनीष भाई ने कहा, लेकिन मुझे लगता है राजहर्ष का पलड़ा भारी है, क्योंकि चेज में अगर आपके 1-2 विकेट भी चले गए तो आने वाले बल्लेबाजों पर एक बॉल का प्रेशर रहता है। दैट्स हाउ क्रिकेट गोज ऑन। बट हैट्स ऑफ टू द वे प्रतीक खेले और सिद्ध खेले। बढ़िया शॉट, 1 रन मिलेगा मिड विकेट की क्षेत्र में। और ये देखिए, ये होता है प्रेशर। सिद्ध जैसे फील्डर से भी फंबल हो सकता है, ये हम कभी सोच नहीं सकते, लेकिन अभी देखिए अचानक से हुआ। हालांकि रन 1 ही मिला, कोई ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। एंजॉय करें आने वाले आगे के कुछ ओवर्स में शालीन भाई गुप्ता साहब को, उनके साथ खुशी उनको थोड़ा एंकर रोल करेंगी। मेन रोल में आपको हमारे बड़े भाई नजर आएंगे। फ्यू ओवर्स शालीन भाई, वो टू। थैंक यू सो मच आलोक और खुशी, बहुत जबरदस्त आप कमेंट्री कर रहे हो। बिग कांग्रेचुलेशंस द वे यू हैव डन द एंटायर कमेंट्री इन द लास्ट 3-4 मैचेस। थैंक यू सर सो मच। बहुत ही मजा आ रहा है मैचेस देखते हुए। हर ही मैच एक क्लोज इनकाउंटर बनता जा रहा है। एंड नाउ वी आर हियर watching RP Warriors chase the total of 76. The target is 77. क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि मैच बहुत ज़बरदस्त होगा, लेकिन मैं जैसा पहले भी कह रहा था, पलड़ा मुझे राजहर्ष का अभी ज़्यादा भारी लग रहा है। हालांकि यहाँ पर एक मौका बन सकता था, रनआउट का 2 रन लिए यहाँ पर साहिल ने। ज़बरदस्त बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन जब तक मनीष भाई हैं इस टीम के लिए हमेशा एक मौका रहता है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी से ज़्यादा उनका अनुभव जो है वो इस टीम को काम आता है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजीज के साथ खेलते हैं मनीष जी। अच्छी गेंदबाजी, जस्ट अ सिंगल एट मिड ऑन। और ये पहले ओवर के बाद स्कोर हो गया है 14 रन। सो दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट इफ यू चेजिंग अ टोटल ऑफ 76. 77 is the target. It's a very good start.
And here's the start of the second over. Krish is coming into bowl. Short delivery. Oh, that's a wide given by the umpire and the first bouncer as well. The leg umpire signals the first bouncer. Rajesh Mehta was trying to pull that. Quick single taken. Square leg की दिशा में आसानी से खेला और पहला ओवर तो बहुत अच्छा हुआ है खुशी. अब देखना है कि इस ओवर में क्या रन रेट बरकरार रख पाते हैं. रिक्वायर्ड रन रेट अभी जो है वो है 12.62. तो जितने रन बनाए हैं उसके आसपास ही रन बनाने होंगे हर ओवर में, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त कारनामा होगा अगर ये कर लेते हैं तो. बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक स्कोर तो बहुत ही अच्छा चल रहा है. छोटी गेंद, बेहतरीन शॉट, लेकिन यहां पर सिद्ध है. क्या अटेम्प्ट है, जबरदस्त. अगर ये कैच हो जाता और ये दूसरे के लिए भाग रहे हैं, हालांकि सिद्ध को यहां नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे थ्रो करना था, लेकिन क्या अटेम्प्ट था. इस अटेम्प्ट के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. आप किसी भी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के क्रिकेट के लिए आपको तालियां बजानी ही चाहिए. इसी तरह के हाई इंटेंसिटी, हाई लेवल, टॉप नॉच क्रिकेट के लिए हम यहां पर सब देखने के लिए एकत्रित हुए हैं, जमा हुए हैं. व्हाट एन एफर्ट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. और सिद्ध जो है वो ऐसा लगता है कि बहुत जबरदस्त एथलीट हैं. जिस तरह से वो बॉल की तरफ आगे गए, जी हाँ, बहुत ही अच्छा एफर्ट था वो. एक बार फिर से इस बार सीधे हाथ में है और ये सृष्टि गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड विकेट. जबरदस्त कैचिंग यहां पर, बढ़िया गेंदबाजी क्रिश के द्वारा और बड़ा विकेट मिलता. बहुत बड़ा विकेट ये. साहिल आउट हुए हैं और एक बड़े स्कोर को चेस करने में अगर आप अपने बड़े बल्लेबाजों को जल्दी खोते हैं तो ये दबाव हो सकता है. डीजे ये बड़ा विकेट मिला यहां पर क्रिश को और राजहर्ष वॉरियर्स को. That's a really big wicket in the context of this match because Sahil has the ability to score quick runs. तारीफ करनी होगी यहां पर क्रिश की और सिद्ध की. सिद्ध छाए हुए हैं इस मैच पर, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो फील्डिंग एफर्ट्स हो, चाहे वो कैचिंग हो. उनका लोहा मनवा कर ही मानते हैं वो. लेकिन आज के हीरो फर्स्ट इनिंग्स के उस अर्धशतकीय पारी के जो बल्लेबाज हैं प्रीत राठौड़, क्या बल्लेबाजी की है. हर गेम के साथ प्रीत की बल्लेबाजी और ज्यादा निखर के आई, हमने देखा इस टूर्नामेंट में. और हर मैच में और ज्यादा खतरनाक बन के उभरे हैं प्रीत. और क्या 50 लगाई उन्होंने पहली पारी में. और मनीष भाई आए हैं बल्लेबाजी करने, इस टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी. फुल टॉस गेंद, बेहतरीन शॉट, डीप स्क्वायर लेग पर एक बार फिर से सिद्ध. और क्या आर्म है इनका, देखिए जबरदस्त बल है इनकी भुजाओं में. बाउंड्री लाइन से थ्रो किया और एक बड़ा विकेट गिर चुका है खुशी. स्कोर हो गया है 19 और इस ओवर में रन आए हैं सिर्फ 5 और एक विकेट भी गया है. लेकिन मनीष भाई स्ट्राइक पे आ गए हैं, क्रीज पर आ गए हैं. अभी तो स्ट्राइक राजेश जी की है. लगातार हर ओवर में 1 या 2 बाउंड्रीज तो चाहिए ही. जी हाँ बिल्कुल, अगर ये चेस कंप्लीट करना है तो हर ओवरों में 1 से 2 बाउंड्रीज तो चाहिए ही हैं, क्योंकि आस्किंग रन रेट अब 13 पर पहुंच चुका है. और यही होता है एक छोटे मैच में जो सिर्फ 6 ओवर का हो, एक एक बॉल बहुत इंपॉर्टेंट. बड़ा शॉट मारने का प्रयास, कैच हो सकते हैं. जी हाँ, बेहतरीन कैच. और ये सृष्टि गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड विकेट गिरता हुआ राजेश मेहता के रूप में. और क्रिश ने तो जैसे ऋतिक रोशन वाले क्रिश की तरह अपनी सारी शक्तियां लगा दी हैं इस ओवर में. दोनों विकेट लिए यहां पर क्रिश ने, बेहतरीन गेंदबाजी. डीजे ऑल ओके.
दिस मे बी अ टीम गेम खुशी, बट इंडिविजुअल ब्रिलियंस डज मैटर अ लॉट. प्रीत राठौड़ ने जो किया है वो एक बहुत ही रेयर क्वालिटी है, बहुत ही रेयर स्किल है. लगातार ऐसे बल्लेबाजी करना, छक्के मारते रहना, स्कोर को आगे बढ़ाते रहना. एंड दैट इज व्हाई द ग्रेट्स ऑफ द गेम हु आर इंडिविजुअल्स आर ऑलवेज रिमेंबर्ड. इसीलिए हम सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कितने ही ऐसे बल्लेबाज हैं, कितने ही ऐसे बॉलर्स हैं जिनको याद करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल ब्रिलियंस डज मैटर. और एक बार हर्षित आए हैं बल्लेबाजी करने. पहली गेंद पर अपना खाता खोला सिंगल लेके, और ये ओवर की समाप्ति. 20 रन हो गया स्कोर 2 ओवरों में. तो ये देखिए इस ओवर में सिर्फ 6 आए और 2 विकेट भी गिरे. यही होता है. है बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही एक्सपीरियंस लाते हैं अपनी टीम के लिए और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली खेलते हैं. अगर आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में सेगमेंट्स में बांटिए तो 24 गेंदें बची हैं और रन चाहिए अभी 57. तो अगर इन 24 गेंदों में 8 या 10 चौके भी आ जाते हैं या 2, 3, 4 बड़े छक्के आ जाते हैं तो काम बन सकता है. यहां पर 4 छक्के मतलब 24 रन, और ये 57 में से फिर सिर्फ 33 रन बचेंगे 20 बॉलों पे. अगर वो 4 गेंदों पे 4 छक्के लगा सकते हैं. ये मैं टोटल 24 गेंदों के हिसाब से सेगमेंटाइज कर रहा हूं इसे. जी हाँ, लेकिन प्रीत आ चुके हैं बॉलिंग अटैक में, तो मुझे लगता नहीं है कि जितना हम कैलकुलेट कर रहे हैं उतना आसान होगा. जी हाँ, लेकिन उतना ही आसानी से शॉट मारा है. और पहली गेंद पर श्योरा ज्वेल्स बाउंड्री यहां पर हर्षित के द्वारा. जबरदस्त बल्लेबाजी. और देखिए मैं ये कह रहा था आपको थोड़ा सा टुकड़ों में इस मैच को बांटना होगा. और ये हवा में खिला हुआ शॉट क्या है, कैच होगा. कोशिश अच्छी है और ये हाथ का आया, मुंह ना लगा और 2 रन. बेहतरीन अटेम्प्ट. अगर अटेम्प्ट के मार्क्स देने होते तो मैं शायद 10 में 11 देता इन्हें. अभी कितनी दूर से भाग के आए थे बाउंड्री रोप से और डीप मिड विकेट और मिड विकेट के बीचों बीच एक गेंद आकर के हाथों तक तो आई लेकिन पॉप आउट कर गई. ये बड़ा विकेट हो जाता अगर ले लेते तो. जी हाँ, स्कोर पहुंच चुका है 24 for 2 after 2.2 overs. Sorry, my bad. 26 for 2 after 2.2 overs. 26 पर 2. 2 गेंदों पर 6 रन बन चुके हैं इस ओवर में और इसी तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत है. बेहतरीन शॉट, जबरदस्त. ऑफ स्टंप के पास शफल करके उसे घूमते हुए मारा और डीप टॉयलेट की दिशा में एक श्योरा ज्वेल्स चौका लगाया है. एक और बाउंड्री. देखिए यही मैं कह रहा था कि अगर आप इसको सेगमेंटाइज करेंगे और अगर आप देखेंगे कि आपके पास 24 गेंदें हैं, उसमें से अगर आपने सब 10 चौके भी लगा दिए तो आप बहुत जबरदस्त पोजीशन में आ जाओगे. जी हाँ बिल्कुल, और करके दिखा रहे हैं वो आरपी वॉरियर्स. देख रहे हैं हम ऑलरेडी 2 बाउंड्रीज आ चुकी हैं इस ओवर में. 3 गेंदों पर 10 रन. और सिल्वर फाइनल्स के कप्तानों से अनुरोध है कि टॉस के लिए प्लीज स्टेज के पास आएं. 3 गेंदों पर 10 रन. सिल्वर का फाइनल गुप्ता वॉरियर्स और जॉन ली वाइकिंग्स के बीच खेला जाने वाला है. और इस बार फिर से ऑफ स्टंप की तरफ सफल किया लेकिन 1 रन मिल जाएगा. और अंपायर का इशारा लेग बाय का, क्योंकि बल्ले का संपर्क नहीं हुआ था. और मनीष जी स्ट्राइक पर आप देख सकते हैं. लुक एट द लेवल ऑफ कमिटमेंट. सिद्ध यहां पर डीप मिड विकेट पे थे और वहां पर अब जा रहे हैं डीप मिड विकेट पे. लिटरली
वन एंड टू अदर एंड सिड को भगाया जा रहा है उनके कप्तान के द्वारा, और वो पूरी तरीके से इसके लिए रेडी हैं। इतना कमिटमेंट है, इतना पैशन है अपनी टीम के लिए उनके अंदर। जी हाँ, बिल्कुल ऑलराउंड परफॉर्मेंस देख रहे हैं हम सिड के द्वारा, फील्डिंग में भी, बैटिंग में भी। बढ़िया शॉट, आसानी से एक रन लिया। क्या 2 के लिए आएंगे? मना किया वहां पर मनीष ने। बेहतरीन ड्राइव थी एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, 1 रन मिला। और इस ओवर में खुशी कितने रन आ गए? अब 11 रन आ चुके हैं इस ओवर में, और एक बॉल अभी भी बची हुई है जो कि हर्षित फेस करेंगे। जी, और हर्षित रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं, 2 चौके लगा चुके हैं। अगर एक और लगाते हैं तो यहां पर बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा ये ओवर आरपी वॉरियर्स के लिए। चलिए देखते हैं। और ये बेहतरीन गेंदबाजी, जबरदस्त यॉर्कर प्रीत के द्वारा, और डॉट गेंद से ओवर की समाप्ति। 32 रन 3 ओवर के बाद स्कोर। और मेरा अनुरोध है गुप्ता वॉरियर्स के कप्तान जिगर शाह से और जॉन ली वाइकिंग्स के कप्तान दिलीप जी से कि प्लीज आके अपने सिल्वर फाइनल का टॉस कर लीजिए। मेरा अनुरोध है टॉस के बॉस राकेश जी से भी कि प्लीज आइए सर टॉस के लिए। इन 3 ओवर्स 15 रन प्रति ओवर का ये रिक्वायर्ड रन रेट। खुशी, क्या लगता है आपको, खुशी आज किसकी तरफ होगी, आरपी वॉरियर्स या राजहर्ष? बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। बहुत ही अच्छी बॉलिंग भी की जा रही है और बैटिंग भी इंटरेस्टिंग हो रही है। वैसे तो मैं आरपी वॉरियर्स को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये स्कोर डिफेंड हो जाएगा आज। शुभम भाई कप्तान आ गए हैं गुप्ता वॉरियर्स के। क्या शॉट है, व्हाट अ शॉट, इज दैट अ 6? इट इज अ श्योर जूल 6। और यही मैं कह रहा था कि जब तक मनीष भाई हैं, वो इतना तेज दिमाग के क्रिकेटर हैं, कैलकुलेट करते हैं हर बॉल, हर ओवर, हर शॉट से पहले फील्डर्स देखते हैं। एंड लुक एट द वे ही हिट दैट आउट ऑफ द पार्क ब्रिलियंटली। दैट्स अ ह्यूज 6 बाय मनीष एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉट right on the first delivery of this 4th over। पहली बॉल पे अगर आप छक्का मारते हैं खुशी, तो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज होता है बॉलर को, क्योंकि अगली 5 गेंदें उन्हें डिफेंड करनी है। बिल्कुल, और मोमेंटम भी शिफ्ट हो जाता है कि शायद अब हम देखेंगे बैटिंग टीम को थोड़ा एडवांटेज मिलेगा यहाँ पे इस फर्स्ट बाउंड्री के बाद। छोटी गेंद, जबरदस्त प्रहार, व्हाट अ शॉट, ब्रिलियंट टू से द लीस्ट। और एक और श्योर जूल्स बाउंड्री। Tremendous batting. Manish is on fire. He's taking his game to the next level, just like Preet Rathod took it in the first innings. We have got the captains here. Shubham Bhai is here. Dilip ji is here. Let's go for the toss, sir. May we request the toss ka boss, Rakesh ji. The score has reached 42 for 2 after 3.2 overs. All credits to Manish ji for his electrifying batting. We've got Dhaval ji, the top boss, along with us.
All right, guys, we are here for the toss of the finals in the silver category. We've got two wonderful captains who led their teams brilliantly throughout this tournament, and that's how they've reached the silver category final. We've got Shubham, who has led the Gupta Warriors brilliantly, and we've got his counterpart, Dilip Ji, who's led John Lee Vikings exceptionally well. We also have with us an all-important final. Maybe that's the reason for chasing. Yeah, a target in mind would be better. You can't just go without any target in mind, because it is really difficult to put the score on the board, and it might be easier if we have the target in mind. Does this decision also have a factor that the last match that you played, which was such an important match, you guys chased it so well, you did not give up till the end, and eventually you came out triumphant? Yeah, that is one of the reasons, but one main reason is they are a batting heavy team. So if we give any target, that might be chaseable for them. So it's better they put the target and we try to chase it. But what do you have in mind? What kind of a target would you want them to restrict to? I think anywhere around 55 would be good enough for us. Well, all the very best. You guys have played exceptional cricket throughout the tournament, and may you have a good outing in the finals as well. So what do you think will be a good total to put up for them to chase? हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया, बिकॉज इन्होंने टॉस जीता है तो हमको मैच जीतना है, तो हम लोग फिलहाल मैच जीतने की सोच रहे हैं, तो स्कोर व्हाटएवर कुछ भी बने। दिलीप जी, आपका डायलॉग ये फेमस हो गया है कि मैं भगवान से मानता हूँ कि टॉस सामने वाले को जिता दो, लेकिन मैच मुझे जिता दो। मैं दिल से ये यही बोल के चाहता था आप कि 4-5 मैच जीत चुके हो सर ऑलरेडी। क्योंकि क्या होता है, मैच जीता तो इनको अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ जीता नहीं, तो एटलीस्ट टॉस तो आप जीते ही हो। क्या बात है, और क्या कॉन्फिडेंस है, मानना पड़ेगा। तो मेरा कोई टारगेट नहीं है, हमारे बैट्समैन जो अच्छा करे। एंड लेट्स कम टू धवल जी, व्हाट डू यू थिंक सर? आप किसी टीम को सपोर्ट कर रहे हो इन दोनों में से, या आपके लिए दोनों ही बैलेंस साइड्स हैं? आपका क्या प्रेडिक्शन है इस मैच के लिए, या क्या आपके थॉट्स हैं अबाउट दिस फाइनल? I just hope that the match is entertaining enough for the spectators over here, and both the teams have like some good batsmen and bowlers and everything, like Jigar bhai in their team, and Vicky and Kunal bhai in Vikings. So it's going to be a cracker of a match, and hope so it looks like that. Lots ये of इंपॉर्टेंट sixes पॉइंट and बोला fours. धवल जी ने, जिगर भाई वाला। अभी लास्ट मैच में हमने देखा जिगर भाई उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए जितना वो यूजुअली करते हैं। ही इज अ गेम चेंजिंग प्लेयर, लेकिन उसके बावजूद शुभम की टीम ने, गुप्ता वॉरियर्स ने मैच निकाल लिया। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो एक ही कहूँगा कि इस मैदान का एक ही किंग है, जिगरा जिगरा जिगरा। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने अपने ओपोनेंट टीम के प्लेयर को सराहा है, और absolutely he does deserve all the respect, all the applause, all the credit, and all the very best to both the captains. धवल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टॉस का बॉस बन के हमारे साथ हर बार जुड़ते हैं। Well, the news from the center is that in the silver category final, the team Gupta Warriors, they won the toss, chosen to field first, and if they asked their opponents, the John Lee Vikings, to bat first. Coming back to the live match, the score has reached 50-2 after 4 overs. And just 27 runs are required of 12 balls for RP Warriors to win this match. Yeah, it's already 50 on the board. 4 ओवर में 50 रन, यानी कि पिछले ओवर में 18 रन। इतना जबरदस्त ओवर निकाला है यहाँ पर मनीष भाई उनकी टीम ने। अब 2 ओवर में चाहिए इन्हें 27 रन। 15 का रिक्वायर्ड रन रेट था, अब 13.5 का हो गया है। क्या लगता है खुशी? बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर वाला मैच है ये। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच भी है ये, क्योंकि हर ओवर में बदल रहा है। कभी ये राजहर्ष की तरफ होता है, कभी ये आरपी वॉरियर्स की तरफ होता है। आइए देखते हैं दर्शकों का क्या कहना है। जी हाँ, बिल्कुल प्रेडिक्शंस लेते हैं ये अपने बहुत जरूरी spectators से। मोमेंट्स हैं। मैम, क्या लगता है आपको? Who's going to win this match? 2 overs, 27 to win. Everything is possible. Because we have seen others' performance in the last matches also. Everything is possible. Well, that's the perfect answer. आप पॉलिटिशियन हो गया? That's the best answer, the most diplomatic answer. But still, do you have your inclinations or maybe affirmations for any team out there? See, equal for us, but the match is going very interesting, and we hope something good should be happen. And
Last hit. Don't want to predict anything, but जो best होगा. वेरी वेल सेड मैम. आप उनसे पूछी थी, आप ही बता दीजिए. There are chances. Manish Bhai's team. Manish Bhai's team. Okay, great. They're playing really well right now. That's a great start to the over. पहली बॉल पे 2 रन लिए. स्कोर हो गया 52. हमारे चहेते रोनिश भाई, इनसे पूछते हैं. बहुत ही टक्कर का चेस चल रहा है, क्या लगता है आपको कौन सी टीम जीत रही है ये मैच? मनीष भाई टिके रहे तो मनीष भाई जीतेंगे, नहीं तो फिर राजेश वॉरियर्स. Paransh, what do you think? Who's going to win this match? Who's going to win this cliffhanger? RP Warriors. You're backing the RP Warriors here? All right. I'm not just backing them. Manish Uncle has a lot of experience and it might help him today. Very well said. And maybe you're right as well, but right now, I think he's played a couple of dot balls. 53 for 2 in 4.3. So, 9 गेंदें बची हैं और चाहिए अब 24 रन. बहुत ही कांटे की टक्कर है खुशियां. ये उस तरफ चलते हैं, देखते हैं. दर्शक सारे यहाँ पर बहुत ही चाव से मैच देख रहे हैं. श्रेयांश जी से पूछते हैं. श्रेयांश जी, क्या लग रहा है? ये मैच तो बहुत ही कांटे की टक्कर में चल चुका है. स्कोर को लग रहा है, पर अभी मैं बोलूंगा तो मेहुल भाई मेरे को अभी मारेंगे, इसके लिए कंफर्म हो जाएगा. मैम, आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है ये मैच? Rajesh. We have a good support for both the teams. Both teams are really good actually. They're playing some exceptional cricket out there. On this time, playing the switch hit. This could be. He's coming back for the second chance of oh! And probably he should have come. Yes, eventually. Lot of drama on that delivery. Would you believe it? He's coming for the third one as well. And is he out? Or is he not out? Looks as if he is not out. Tremendous running indeed. Converted a single to 3 runs. Absolutely stunning bit of running by Harshit. 8 बॉल पे अभी रन हो गया है. हर बॉल पे ड्रामा हो रहा है खुशी. हर बॉल एक इवेंट है. एक भी ऐसा मोमेंट नहीं था कि जहां पे आपको नील बाइटर ना दिखा हो. Absolutely, and ये तो 3 रन ऐसे कन्वर्ट किए कि जैसे डेस्परेशन पूरा अंकिन कर गया था. जी हाँ, ब्रिलियंट रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखिए पे. और इसी तरह के डेस्परेशन की जरूरत है, तभी ये टारगेट चेस हो पाएगा. लेकिन तारीफ करने होगी हर्षित की, पूरा दम लगा दिया. बेहतरीन मैच होता हुआ. 56 for 2. 4.4 में 8 गेंदें बची है, 21 रन चाहिए. अमित जी से पूछते हैं. अमित सर, कैसा लग रहा है इस मैच को देख के? पहले तो ये बताइए. वेरी एक्साइटिंग. यहाँ से मुझे लगता है मनीष भाई अगर टिके रहेंगे तो शायद हो सकता है दे कैन विन फ्रॉम हियर ऑल्सो. मनीष भाई हैज कैपेबिलिटी टू लीड द गेम एंड ही कैन कवर इट ऑल द व्हाटएवर मे बी द स्कोर ही कैन डू इट. पर मनीष भाई चाहिए. मनीष भाई जब तक ग्राउंड पे है तब तक चांसेस है उनके. क्या बात है. ऐसा विश्वास तो MS धोनी के लिए होता था जो हमने सुना था. और इस बार थोड़ा सा यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए गए और चूक गए. डॉट गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी प्रीत के द्वारा. तारीफ करनी होगी. एक डॉट गेंद निकाली 7 बॉल पे. अब चाहिए खुशी 21 रन. डॉट बॉल जो है वो किसी भी तरह से गोल से कम नहीं है इस समय. और मेहुल भाई है हमारे साथ, जबरदस्त खिलाड़ी. हमने इनके कारनामे 2 दिन तक लगातार देखे, इनसे भी जानते हैं, जानना चाहेंगे इसके बाद. और ये वाइड बॉल, और ये क्या कर रहे हैं? और क्या ये चौका हो सकता है? जी नहीं,
लेकिन वाइड के साथ 2 रन मिल गए तो 3 रन हो गए। क्या बात है मेहुल जी, क्या कहना है आपका? मैच तो हर गेंद के साथ रोमांचक होता जा रहा है, रोंगटे खड़े करने वाला मैच है ये। बिल्कुल लास्ट गेम की तरह एकदम 50-50 चल रहा है। लास्ट गेम में जिगर भाई क्रीज पे थे, अब की मनीष भाई है, तो ये दोनों भाई जब तक क्रीज पे है सामने वाली टीम प्रेशर में है, और ये प्रेशर में ही ये सब मिसफील्ड और 2 रन आ रहे हैं। बट इसमें एक देखने वाली बात ये भी है कि लास्ट ओवर इनका कौन डालेगा, बिकॉज इनके प्राइम बॉलर्स खत्म हो चुके हैं, तो वो इंटरेस्टिंग है लास्ट ओवर। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, क्या शॉट है, एक शेयर है, जूल बाउंड्री, जबरदस्त बैटिंग यहाँ पर खुशी मनीष के द्वारा। जी हाँ, बहुत ही अच्छी बैटिंग हो रही है यहाँ पे आरपी वॉरियर्स के द्वारा। बहुत ही मजा आ रहा है ये रन चेज देखने में। स्कोर पहुंच चुका है 63 फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 2 विकेट्स। क्या यहाँ पर ओवर की समाप्ति होगी? ऐसा लग रहा है कि हाँ, और अब सिर्फ 14 रन चाहिए एक ओवर में। क्या मैच को बना के लाए हैं यहाँ पर हर्षित और मनीष, तारीफ करनी होगी। जी हाँ, मैंने पहले भी कहा था सिर्फ 14 रन चाहिए 6 गेंदों पर टू विन द मैच एंड रीच द फाइनल्स। To reach the finals of the gold category. स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लास्ट ओवर डालने से पहले। जी हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि चैंपियंस की होती है निशानी कि अपने ही हाथों वो लिखते हैं अपनी कहानी, और यहाँ पर मनीष वही कर रहे हैं हर्षित के साथ मिलके, दोनों ही चैंपियन क्रिकेटर्स। और तारीफ करनी होगी, अब देखना है कि क्या इस कहानी को जो उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया है पूरी कर पाते हैं, क्या लाइन को क्रॉस कर पाते हैं। देख सकते हैं ऑडियंस भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है ये रन चेज देखने के लिए। जी हाँ, कुछ लोग तो मुझे सुनने में आ रहा है कि आधे रास्ते से वापस आ गए हैं, घर जा रहे थे और लोनावला स्टेशन से ही वापस आ गए मनीष भाई की बैटिंग देखने के लिए। जिस तरह से मनीष भाई बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहले प्रीत ने कुछ लोगों को वापस बुलाया आधे रास्ते से, और अब मनीष भाई। थोड़ी देर में लगता है कि जो लोग मुंबई गए हैं वो भी यहाँ पर दिखेंगे। जबरदस्त यहाँ पर माहौल गर्माता हुआ, हवाओं में ठंडक बढ़ रही है लेकिन माहौल में गर्मी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग लास्ट ओवर होने वाला है ये। निकित डालेंगे लास्ट ओवर। जी हाँ, निकित पे खासा दबाव होगा क्योंकि दोनों बल्लेबाज अपने प्राइम फॉर्म में खेल रहे हैं और बहुत बड़ा ये मैच। और ये क्या करना चाह रहे थे, ऑफ स्टंप से बाहर शफल करना चाह रहे थे, लेकिन तारीफ यहां निकित की बनती है। फुल लेंथ गेंद डाली ब्लॉक होल में यॉर्कर, और अगर इसको ड्राइव करने की कोशिश करते तो ऑफ साइड पे आराम से 1 या 2 रन तो मिल जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये थी एक डॉट बॉल एंड अब चाहिए हैं 14 रन इन 5 बॉल्स। और आगे बढ़ के फिर से कुछ बड़ा करने का प्रयास। आपको सिर्फ मनीष भाई को स्ट्राइक देना है, 2 गेंदें इसी में निकल गई, 4 गेंद पर 14 रन। कहीं ये बहुत बड़ा एक कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है खुशी, क्या लगता है? इतना आसान नहीं होगा, राजहर्ष वॉरियर्स इतना आसान उन्हें स्ट्राइक रोटेट करने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर मनीष जी स्ट्राइक पर आ जाते हैं तो शायद मैच फिसल सकता है हाथों से। एब्सोल्युटली। और अब देखना है कि इस तीसरी बॉल पे क्या करेंगे। निकित की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, इतने दबाव में भी क्या निखर कर बाहर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और अपनी तीसरी बॉल डालने जा रहे हैं ओवर की। फुल टॉस, बेहतरीन शॉट, लेकिन क्या 2 के लिए आएंगे? ऐसा लग रहा है कि नहीं, मनीष स्ट्राइक रखना चाहेंगे। 1 ही रन, और अब 3 गेंदों पर चाहिए 13 रन। अब देखते हैं कि क्या होता है। स्ट्राइक में फील्ड में थोड़ा चेंज किया जा रहा है मनीष जी की स्ट्राइक आने पर। जी हाँ, लेफ्टी हैं तो ऑफ कोर्स निकाल दिया अगर एक तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, 2 डॉट निकाल दी तो मैच खत्म हो जाएगा, उनके पक्ष में आ जाएगा। और अगर विकेट ले लिया मनीष का तो और ज्यादा मैच
जबरदस्त मोड पे आ जाएगा। तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, हमारे यहाँ पर कुछ मैथ्स के स्टूडेंट्स भी होंगे, वो समझ रहे होंगे पीएनसी क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और नेक्स्ट बॉल डालने से पहले बहुत ही फील्ड में चेंज किए जा रहे हैं, बहुत ही डिस्कशंस किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है नेक्स्ट डिलीवरी। निकित टू मनीष, और ये यहां पर चूक गए, और देखिए खुद से खुश भी नहीं है, एक ही रन बना। और निकित यहां पर जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड करते हुए बेहतरीन गेंदबाजी, 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए हैं। क्या लास्ट ओवर डाला है, बहुत सालों तक ये ओवर याद रखा जाएगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, हालांकि निकित की तारीफ यहां पर फिर से बनती है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं निकित यहाँ पर। अभी भी 12 रन चाहिए 2 गेंदों पर, अभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं राजहर्ष वॉरियर्स ने शायद आरपी वॉरियर्स के हाथों से चुरा लिया है ये मैच। अभी नहीं चुराया है, अगर हर्षित मनीष भाई बन जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। निकित टू हर्षित, निकित अपनी 5वीं गेंद लेकर आते हुए, और ये चूक गए, जबरदस्त गेंदबाजी। और निकित कह रहे हैं कि तू मेरी ऊंचाइयों को नापने की कोशिश मत कर, मैं आसमान में घर बना के रहता हूं। वाह, जबरदस्त गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। और अब एक बॉल पे चाहिए खुशी 11 रन। तो आप जो कह रही थी खुशी कि ये मैच लग रहा है कि आरपी वॉरियर्स के हाथ से निकल गया, और लगभग आपने जो कहा वही हुआ। जी हाँ, अब तो 11 रन चाहिए हैं आखिरी गेंद पर। निकित की बहुत ही उम्दा गेंदबाजी देखी हमने इस लास्ट ओवर में। ये ओवर बहुत साल तक याद रखा जाएगा। जी हाँ, बहुत स्पेशल होगा उनके लिए ये ओवर, हमेशा याद करेंगे ओएपीएल के इतिहास में एक बहुत ऐतिहासिक ओवर डाल दिया है निकित ने। और ये वाइड, अभी भी 10 चाहिए। कुछ तो ऐसा अगर हो सकता है क्या जिससे मनीष भाई को कुछ मौका मिले। मैं बता रहा हूं, वो कहीं ना कहीं अंदर से सोच रहे होंगे, इतने एक्सपीरियंस है कि सामने वाले की आंख में देखते हैं तो थोड़ा सा दबाव अपने आप आ जाता है। जी हाँ, क्या अभी भी कुछ पॉसिबल है आरपी वॉरियर्स के लिए? बहुत बेहतरीन शॉट, और ये है शिवराज छक्का, लेकिन थोड़ा सा चूक गए। 3 रन से इस मैच को आरपी वॉरियर्स हार गए हैं और फाइनल में प्रवेश किया है राजहर्ष वॉरियर्स ने। तारीफ यहां दोनों टीमों की बनती है, लेकिन यहां आज जो असली विजेता है वो है निकित, क्योंकि उसने दबाव में जो गेंदबाजी डाली है वो देखते ही बनती है। क्या कहती हैं खुशी आप? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन देखा हमने लास्ट ओवर में निकित के द्वारा। राजहर्ष वॉरियर्स एंटर करते हैं गोल्ड कैटेगरी फाइनल्स में। आंटी बहुत बढ़िया खेले मनीष भाई, मैच भले हारे लेकिन दिल जीत के गए हैं। मैं बोल रहा हूं ना, मैच भले हार गए लेकिन दिल जीत के गए हैं। मनीष भाई दिल जीत के गए, सबका हमेशा से जीतते आ रहे हैं, आज भी। मनीष भाई एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे आप?